Everyone, this is Rubina Bano. I will be talking about the Act Arbitration and Conciliation Act 1996. This is in the syllabus of LLB 3 years, 5th semester. So, as the name suggests, the Arbitration and Conciliation Act. This includes arbitration and conciliation. So, we will start from arbitration. So, you can see this is the act. This act, the first section of this act is short title and extent commencement, and the second section is of definitions. This definition extends till part 2 subsection 9, and the third section is receipt of written communication. So we will start from the introduction. What is an arbitration? So if the two parties are involved in a business or in a kind of any kind of contract, like that contract may be related to business partnership and any kind of mercantile transactions. So they form a contract, and they get caught in a dispute in future. So they involve a clause in their contract that when the dispute arises, we will resolve our dispute in such and such a way, and we will not go to the court. So in that clause they involve saying that if we have such kind of dispute, we will go for an arbitration, and we will appoint an arbitrator. They may mention the arbitrator at the time of the contract, or they may not mention it. They may mention the fees of the arbitrator, they may not mention the fees of arbitrator. So arbitration is a process that when two parties are involved in a dispute and they go to resolve to the arbitrator, and the arbitrator is of unbiased personality. There is no situation of biasness, and he resolves the dispute between the parties. This is called the arbitration. So if we basically see, the arbitration involves a dispute, and when dispute arises, they go for the arbitration. And arbitration में लिमिट होता है कि अगर डिस्प्यूट अराइज हुआ है, पार्टीज आर्बिट्रेशन में गई हैं, तो इतने दिन में उनका ये जो मामला है ऐसे निपटारा हो सकता है. मतलब कि सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर से लेंथी प्रोसेस का नहीं होता है. एंड जो आर्बिट्रेशन के बाद अवार्ड आता है वो दोनों पार्टीज़ पर बाइंड होता है. ठीक. और जो यहाँ CPC और एविडेंस एक्ट हैं वो यहाँ फॉलो नहीं होते हैं. On family dispute may be between brother and brother, husband and wife, subject to the condition कि CPC BNS के मामले नहीं आ रहे हों. जब ये से मामले नहीं आएंगे तो आर्बिट्रेशन वहाँ पर भी लागू हो सकता है. अगर अवार्ड नहीं मान रही है दोनों पार्टीज़, तो उस पार्टीज़ के कंसेंट पे है कि दे कैन प्रोसीड टू द कोर्ट. मीन्स आपको आर्बिट्रेशन जब भी पढ़ना हो, आप एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो, और कुछ भी करना है तो कंसेंट ऑफ द पार्टीज इज रिक्वायर्ड. कंसेंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट, you should remember it. This act basically, when we will study, we will see on the domestic level, commercial purpose. So when we talk about international arbitration between two companies, one may be of none. One must be a foreign company or registered firm, whatever it is. Arbitration के time bound gives money. मतलब arbitration क्या है कि सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर में जैसे होता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, तारीख पर तारीख, वैसा सिचुएशन नहीं आने पाएगा. इसमें होता है कि इतने लिमिट में मामला सुलझा देना है. लाइक आर्बिट्रेशन का पर्पस ही है क्या कि
विवादों का निपटारा जल्दी हो जाए, यानी स्पीडी जस्टिस। स्पीडी जस्टिस इज वन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ नेचुरल जस्टिस, लाइक so this is, or when we talk about arbitration, then principle of natural justice must be followed. Rule against bias, odi ultram partem, reason decision. So just for an introduction, briefly we say कि arbitration तब होता है जब दो पार्टीज अपने में पार्टनरशिप में आती हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं, एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के तहत कि वो फ्यूचर में कभी कोई डिस्प्यूट हो जाता है, सो एंड सो पर्सन को वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगी और जो है अपने मामले को सुलझाएंगी। और इस दौरान वो बाकायदा देखेंगी कि उस डिस्प्यूट का पता दोनों पार्टीज़ को पता होना चाहिए, आर्बिट्रेटर पार्टीज़ की सहमति से अपॉइंट होना चाहिए। और आर्बिट्रेशन क्यों हम जाते हैं सिविल और उसकी बजाय, बिकॉज वी वांट स्पीडी जस्टिस, लाइक सो स्पीडी जस्टिस। आर्बिट्रेशन में प्रिंसिपल ये फॉलो होना चाहिए कि नेचुरल रूल अगेंस्ट बायस, adi ultram partem and reasoned decision। reasoned decision मतलब पता ही होगा कि where a judgment is given, judgments have two parts, ratio decidendi, obiter dicta। obiter dicta is observation of the court and ratio decidendi is the portion that has binding effect on lower court। सो एडीआर में स्ट्रिक्टली रूल्स ऑफ सीपीसी अप्लाई नहीं करते हैं, बट कुछ प्रोविजंस हैं नेचुरल जस्टिस की वजह से लगेंगे। और एक चीज़ और इसमें जान जाए कि कॉकस क्या होता है। जब दो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट होता है तो जो आर्बिट्रेटर होता है वो पर्सनली मतलब वन बाय वन पार्टीज से अपना एक मतलब बातचीत रखता है, ठीक, प्राइवेट टॉक बिटवीन, जो लीगली अलाउड होता है उसको कॉकस बोलते हैं। आर्बिट्रेटर का ये होता है कि वो क्या करेगा, डिस्प्यूट है कि या कॉन्फ्लिक्ट है उन दोनों पार्टीज़ के बीच में। तो जब कॉन्फ्लिक्ट होगा मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो आर्बिट्रेटर का जो ड्यूटी है वो उस कॉन्फ्लिक्ट को बैलेंस करने की कोशिश कराएगा, ठीक। तो इसीलिए कॉकस यूज़ किया जा सकता है कि क्या पता पर्सनली जो है वो थोड़ा अपनी बातों को खुल के स्पेसिफिकली बता सके। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होगा, लीड टू आर्बिट्रेशन। अगर ये होगा तो हम आर्बिट्रेशन की तरफ बढ़ जाएंगे और मीडिएशन के प्रोसेस को नहीं जाए। आर्बिट्रेशन और मीडिएशन फाइंड्स आउट काज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पर्पस। सो यू कैन सी arbitration dispute limitation, parties can't disobey an award, means जो जजमेंट आता है आर्बिट्रेशन के तहत उसको अवार्ड बोलते हैं, और अवार्ड दोनों पार्टीज़ पर बाइंड होता है। और ये जो क्लाज मेंशन होता है इन एग्रीमेंट डीड उसको आर्बिट्रेशन क्लाज बोलते हैं। इस एग्रीमेंट डीड में क्या होता है कि एक पर्सन के बारे में बताया गया होता है कि दिस पर्सन विल बी एन आर्बिट्रेटर, वो क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है, साउंड माइंड होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, नॉट बी बायस्ड नीदर डायरेक्टली नॉर इनडायरेक्टली, मतलब कभी भी सालों साल पुराना कहीं से रिश्ता ऐसा निकल के ना आए कि वो लग जाए कि ये आदमी इस पार्टी के पक्ष में बात कर सकता है, ठीक है। और डिसीजन को आर्बिटर अवार्ड बोलते हैं। ये बायस हो जाता है तो अवार्ड बाइंडिंग नहीं होता, वो पता चल जाए कि बायसनेस है, ठीक है। सी यू नेक्स्ट इन द